یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان دس ریڈنگ اس میں جس کا سرخ پوشاک پہنے ہوئے، نو آئی ایم ریپریزینٹنگ آئزایا، میں یسایا ہوں. And in the Old Testament it's not mentioned, but actually it is Jesus Christ. یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خراماں ہے. یہ میں ہوں جو صادق، اخور اور القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے سارے ساتھ کوئی نہ تھا. ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے خوش جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا. میں نے تعجب کیا اور کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر سے مجھے سنبھالا. میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا. ہاں میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب میں ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا. لباس کیوں سرخ ہے؟ اور یہ سوال عزائیہ کر رہا ہے اس سے کہ تیرا لباس کیوں سرخ ہے؟ سرخ لباس کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے قاتلوں کو دیکھا ہے جو قتل کرتے ہیں. بہت سارے پاکستان میں یہاں پر بھی جو لوگ قتل کر کے آتے ہیں تو ان کے وہ اپنے کپڑوں کو چھپا دیتے ہیں. پولیس جب انہیں ڈھونڈتی ہے تو دے آر اسٹینڈ، بلڈ اسٹینڈ. واٹ از دا کلر آف بلڈ؟ ریڈ. تو سرخ رنگ جو ہے وہ تیرا لباس جو ہے وہ کیوں سرخ ہے؟ یہ اس کو بڑے ڈیپلی ہم نے دیکھنا ہے اور ہے تو یہ بہت لمبا سرمن، لیکن میں اس کو بہت لٹکانا بھی نہیں چاہتا. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں دو ریڈنگز آپ کو 2-3 ریڈنگز جو آپ کو ضرور سمجھنی پڑیں گی. نو فرسٹ آئی گو ٹو Psalm 2. زبور 2 جو ہے، میں دونوں میں تو اس کو نہیں سب چیزوں کو کروں گا کیونکہ یہ بہت لینتھی ہو جائے گا پھر، لیکن آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. زبور 2 جو ہے یہ بہت پاورفل اور بہت فنٹاسٹک زبور ہے. Psalm 2 جو ہے، اور یہ ہمیں اینڈ ٹائم کا ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ ہمیں اینڈ ٹائم کو ڈھونڈنے کے لیے زبور 2 کو ضرور، زبور 2 جو ہے اس کو ضرور دیکھ لو. آپ اس میں آپ دیکھیں کہ قومیں ایک تو یہ آپ پہلی آیت سے شروع کریں تو قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھے ہوئے ہیں؟ قومیں کیوں تیش میں ہیں؟ آج دنیا میں دیکھیں قومیں کیوں تیش میں ہیں. ایک اتنا سا ملک ہے، اتنا سا ایک انگلی جتنا سا ملک ہے، وہ بھی پورا نہیں ان کے پاس. اس میں بیت لحم، وہ جو کیا ہے دوسری سائڈ کیا ہے وہ والی ویسٹ بینک جو ہے، یہ سارے یہ انہوں نے قبضے میں کر لیے ہوئے، اسرائیل کے ہیں وہ، اور پھر بھی وہ اسرائیل کو
पिछले साल हमास ने 4000 मिसाइल इसराइल पर फेंके, 4000 मिसाइल इसराइल पर फेंके पिछले साल। छोटा सा मुल्क है लेकिन खुदा उसके साथ है। तो कौमें तैश में हैं। अभी आप देखें, ये चाइना में तो बात तो बड़ी लंबी हो जाती है। फिर चाइना और रशिया जब आपस में मिल गए, क्यों मिल गए हैं? ये यूरोप के अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि यूरोप और अमेरिका, और इधर से ये जो इसराइल है, इसराइल के साथ इनमें से आप इसको यूरोप का भी देखें, इसराइल भी यूरोप के साथ नहीं है। इसराइल नहीं, सॉरी, यूरोप जब इसराइल के साथ नहीं है, यूरोप ने अपने फंड से वेस्ट बैंक के अंदर, जो कि एक इनके जो मुआहदा है उसके तहत 1, 2, 3 इन्होंने उन जगहों को उसके सदाम हुसैन के ज़माने से ये हुआ है। तो वन वो प्लेस है जो सिर्फ उनके पास है, 2 वो है जहाँ ज्यूज भी जा सकते हैं और वो भी आ सकते हैं, 3 वो है जो ज्यूज के पास है। इन्होंने 2 में जहाँ पर के ज्यूज भी जा सकते हैं, उस जगह पर उनको जगह बना के यूरोप ने अपने फंड से उनको जगह बना के दी है जहाँ पर वो परमानेंटली वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है। मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन यह कि 6ठी आयत में देखें, 6th वर्स में, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बिठा चुका हूं। He is already there. What is Kohe Siyon? Kohe Siyon is Zion. Zion is Jerusalem. Kohe Siyon is Zion. Zion is Jerusalem. कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा क्या कह रहा है कि मैं अपने बादशाह को कोहे सिय्योन के ऊपर बिठा चुका हूं। He is already in Jerusalem. मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तू मेरा बेटा है। बेटा कौन है? खुदा का मसीह। तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग कर मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। नंबर 9 में लिखा है, तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? मसीह तोड़ेगा लोहे के असा से। विद द आयरन रॉड। जब मसीह ने जब दोबारा आना है तो इस तरह नहीं आना जैसे वो पहले आया था। लोग उसके मुंह पर थूके भी, उसे मुक्के भी मारे, सब कुछ करें और वो चुप करके खड़ा हो और पायलट से पूछे तो आगे से जवाब ही ना दे। इस तरह तो नहीं आएगा। किस तरह आना उसने? इज कमिंग विद एन आयरन रॉड। उसका स्ट्रक्चर जो है वो आयरन रॉड है। उससे उसने क्या करना है? कौमों के ऊपर हुकूमत करनी है। और ये जो इज़ाया का हमने 63 पढ़ा है, ये भी इसके साथ है। वो उनको कुम्हार के बर्तन की तरह, कुम्हार का बर्तन मिट्टी का होता है, उस पर लोहे का डंडा मारे तो क्या उसको कुछ रह जाता है? तो ये जो बेटा है, ये क्या करेगा? अपने लोहे के उस क्या नाम है, लोहे के रॉड से उसको मिट्टी के बर्तन की तरह चिकना चूर। किसको करेगा? कौमों को करेगा। तो अजीजों, ये है कि वो आगे से जवाब से ये मिलता है, ये मैं हूं जो सादिकुल कौल
اور صادق القول کا مطلب سچائی کا بولنے والا، اسپیکر آف ٹروتھ. اور سچائی کا بولنے والا کون ہے؟ وہ مسیح ہے. تو عزیزوں یہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون کا بڑا، اس کو غور سے دیکھ. کون ہے؟ کون وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. کون وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام ہی خدا تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کلام ہی خدا ہے. کلام وہ کلمہ ہے جو خدا کا کلمہ ہے. تو یہ وہی ہے جو موسیٰ کو جھاڑی میں نظر آیا. موسیٰ کو جھاڑی میں، یہ وہی ہے. کون ہے؟ یہ وہی ہے جو موسیٰ کو جھاڑی میں نظر آیا. موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے، میں ان کو کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ میں ہوں. میں ہوں کون ہے؟ خدا. خدا کا نام ہے میں ہوں. میں ہوں جو میں ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کی دوسری ورس جو ہے اس میں کیا ہے؟ یہ میں ہوں. اٹ از آئی. یہ میں ہوں. تو یہاں پر بھی یہ وہی لفظ ہے جو ہم اکثر یوحنا کی انجیل میں آپ کو پڑھے تو وہاں پر بھی اس کو یہی لفظ ملتے ہیں. یہ میں ہوں. میں ہوں مسیح خود ہے جو میں ہوں جو میں ہوں. اور اگر ہم اس کو مکاشفہ کا 19 باب اگر آپ نکالیں، Revelation 19. Revelation 19 اور اس کی ورس 12 جو ہے اس سے میں پڑھتا ہوں. اور وہ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں. اب میں اس پر تو آپ کو نہیں کہتا کیونکہ اس کو آپ ڈینیل میں پڑھ لیں، مکاشفہ میں پڑھ لیں. بہت ساری جگہوں پر آپ کو مکاشفہ کے شروع میں بھی آپ پڑھیں اس کو، آگ کے شعلوں کا اس کی آنکھوں کے بارے میں ذکر ہے اس میں. اچھا، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کا نام کلام خدا ہے. اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. کلام خدا. کلام خدا مینس خدا کا کلمہ، اور کلمہ وہ ہے جو منہ سے نکلا ہوا ہے. خدا کا کلام یا کلام خدا ہے. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے قوموں کے مارنے کے لیے. یہ جو ائزایا 63 میں نے پڑھا آپ کے سامنے، یہ اسی کا ریفرنس ہے. اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار، تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. جو ہم نے زبور 2 میں ہم نے دیکھا ہے، لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک اور ران، اس کی پوشاک اور ران یہ ہے، آپ یہ جانتے ہیں. اس کی ران پر ایک نام لکھا ہوا ہے، بڑا بہت بڑا پاورفل نام لکھا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ سارے مل کر کہیں نا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا. اس کے آگے اور کوئی خدا کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اس سے بڑا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس
एक मिनट में रेफरेंस जरा मैं देख लूँगी कौन सा 14 है। हाँ 14 में, रेवलेशन 14 में है, उसकी वर्ष है 10। और वो खुदा के कहर की, वही लफ्ज़ जो उसने यशायाह ने इस्तेमाल की है, खुदा के कहर के उस खालिस मैय को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने, वो बर्रा के सामने आग और गंधक के अज़ाब में मुब्तला होगा। तो और फिर इसकी जो 20वीं आयत है, 19 और 20वीं, और फरिश्ता ने अपनी दरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज़ में डाल दी, और शहर के बाहर उस हौज़ में अंगूर रौंदे गए, और हौज़ में से इतना खून निकला, देखो रौंदे अंगूर गए हैं, लेकिन उसमें से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह गया। अब बात यह है कि खुदा का गज़ब जो है वो भड़क रहा है। किसके खिलाफ भड़क रहा है? बात सारी उसी जगह पर जाती है। किसके खिलाफ भड़क रहा है? किसके लिए भड़क रहा है? इसराइल के लिए भड़क रहा है, इसराइल के लिए भड़क रहा है। और किसके लिए? ये सारी कौमें जो उसके गिर्द हैं, ये जितनी मिडिल ईस्ट की कौमें हैं वो सारी, ये चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे मुल्क जो हैं इसमें शामिल हैं। और इनके खिलाफ खुदा का गज़ब अब भड़क रहा है, और वक्त बहुत करीब है कि जब मसीह खुदावन ने आना है तो फिर उसने अपने उस लोहे के असा से इनके, और वही ये जो 63 मुकम उसमें क्या नाम है, ज़ाया में है, हौज़ पुराने ज़माने में, आपको पढ़ते आप भी हैं होंगे, पुराने ज़माने में अंगूर जो थे वो बड़े बड़े पत्थरों के हौज़ बनाते थे, उनके अंदर पैरों से उनको, क्योंकि ज़्यादा होते थे ना, पैर साफ करके तो पैरों से उनको प्रेस करते थे, और उनका जो जूस निकलता था उसे इकट्ठा करते थे, वो फिर वो अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये जूस जो है, ये अंगूर जो है ट्रैम्पल किए जाते हैं, पाँव से दबाए जाते हैं, और फिर उनका जूस, और खुदा जो है इन कौमों को अपने पाँव से इस तरह से लताड़ेगा। वहाँ उर्दू में उसका ट्रांसलेशन भी लताड़ना ही है। लताड़ना आपको पता है कि पाँव से आप बहुत सारी चीज़ें लताड़ते हैं, अरे आपने देखी है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मजदूर बहुत सारी मिट्टी बनाते हैं तो वो पाँव से उसको लताड़ते हैं बहुत सारे, और फिर वो बन जाती है। तो कहानी लिपाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं देहातों में, तो वो बन जाती है। तो बात सूरत ये कि खुदा ने, इस बेटे ने, खुदा ने नहीं, मसीह खुदावंद ने इन कौमों को इस तरह, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि जो फिलिस्तीन है, मुल्क फिलिस्तीन, यहाँ ये लिखा है इतना खून निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुँच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। 1600 फरलांग जो है वो फिलिस्तीन की लंबाई है इस वक्त। 1600 फरलांग जो है वो यानी 180 मील है। ये 180 मील जो है वो फिलिस्तीन की लंबाई है शुमाल से जनूब तक। तो जब वो हौज़ में अंगूर रौंदेगा तो ये जो, और रौंदने से फिर ये कि आपको चींटे भी पड़, अब यशाया को हम भूल नहीं सकते जो कुछ उसने लिखा है। वो पाँव से जब आप अंगूर रौंदते हैं तो उसके चींटे भी ऊपर निकलते हैं, वो चींटे लिबास पर पड़ते हैं, ठीक है, लिबास पर पड़ते हैं। और
क्यों ये कहा गया है कि इतना खून निकला, क्योंकि असल बात ये है कि ये कोई ग्रेव्स तो जो है उनको तो टेम्पल नहीं करना, उसने करना तो कौमों को है, लोगों को करना है। जब लोगों को करेगा तो उससे खून भी निकलेगा और वो खून जो है वो उसके लिबास पर पड़ेगा। और इसलिए यशायाह ये कहता है कि तेरा लिबास जो है वो क्यों सुर्ख है। और उसका जवाब वो क्या देता है कि मैंने तन तनहा, अकेला, उसी के साथ और कोई नहीं है, मैंने तन तनहा हौज में अंगूर रौंदे। तो वो अकेला जो है इस जो बादशाही, क्योंकि बादशाह तो एक ही है और वो मसीह खुदावंद है, तो उसने तन तनहा उसने अंगूर रौंदने हैं, उसने अकेले ने हुकूमत कर रही है। और वो अंगूर जब रौंदेगा तो अंगूर रौंदने का मतलब है कि वो खून जो निकलेगा, यहाँ पर उसको ये मुकाशवा में लिखा है कितना खून घोड़ों की लगाम में, लगाम आप जानते हैं कि उसके मुंह में होती है और मुंह उसका ऊंचा होता है, यानी इतना ज़मीन से ऊपर खून होगा, इतना बहेगा कि खून। और अगर आप हिजकिय्याह में, हिजकिय्याह में अगर आप उसके 38 बाब में इसको पढ़ें, इसकी जो जंग है गाग में गाग की, और इसमें भी आप इसको थोड़ा सा जिक्र इसका पढ़ सकते हैं। ये 20वें बाब में है, उस शैतान की शिकस्त जहाँ लिखा हुआ है। ये जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करेगा। जूज जो है वो पीछे पुराने नामे में देखे तो जूज जो है वो ज़मीन नहीं है, जूज जो है वो आदमी का नाम है, शख्स का नाम है, जिसकी ज़मीन जो है वो माजूज है। माजूज ज़मीन का नाम है, जूज शख्स का नाम है। तो जूज ने माजूज जो उसकी सरजमीन है उसमें लिखा है कि सारे लोगों को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। और ये जैसे कि यहाँ लिखा है, ये जो जंग है ये लास्ट वार है दुनिया की, लास्ट वार। इससे पहले जो वार है, इससे पहले जो वार है वो आर्मगेडन की, जब मसीह खुदावंद ने आना है ज़मीन के ऊपर, कोई क्या नाम उसका, जकरिया के ऊपर कोई सही नहीं, वो है, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। उसी के ऊपर है, मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका बात। और वो जैतून, कोई जैतून, जकरिया नहीं, जैतून सारी, कोई जैतून के ऊपर आना है। और कोई जैतून जब फट के 2 हिस्सों में हो जाएगा और एक शाहराह बन जाएगी, और वो शाहराह जो उस पर मसीह खुदावंद ने उस ईस्टर्न गेट में से हैकल के अंदर जाना है, जो इस वक्त सालों साल से बंद है, जिसको ना कोई खोलता है ना कोई इसको खोल सकता है। आपने देखा ये उसको जो वहाँ पर गए हैं। तो अजीज़ों, बात ये है कि ये जंग जो है ये आखिरी जंग है गाग में गाग की। आर्मगेडन जो है वो उससे पहले, जब मसीह खुदावंद ने आना है अपनी 1000 साल बादशाही के लिए, उससे पहले मसीह खुदावंद ने उस जंग को आके ख़त्म करना है और बादशाही करनी है 1000 साल। ये 1000 साल बादशाही के बाद का जिक्र है, इसको याद रखें। 1000 साल बादशाही के बाद का जिक्र है, जिसमें गाग में गाग की जंग होगी। जब इब्लीस को जो 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा और वो कौमों को फिर इकट्ठा करेगा, और कौमों को इकट्ठा करके उनको फिर इसराइल के खिलाफ बादशाही फिर इसराइल पर ही जाती है। इसराइल के खिलाफ जंग के लिए उनको इकट्ठा करेगा और फिर उस जंग का इख्तिताम जो है इसी ये मुकाशवा में लिखा है। वो और आगे आप पढ़े, उसको लिखा है तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को, अजीज शहर कौन सा है? उसको चारों तरफ से घेर लेंगी।
لیکن आसमान पर से आग नाज़िल होकर उनको खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला, अब ये देखें कि जिस तरह खुदा की ट्रिनिटी है ना, इब्लीस की भी ट्रिनिटी है। खुदा की ट्रिनिटी है, खुदा बाप बेटा रूह कुदस, और इब्लीस की भी ट्रिनिटी, उसने भी अपनी ट्रिनिटी, क्या उसकी ट्रिनिटी क्या है? false prophet, हाँ, फॉल्स प्रॉफिट, Satan himself. 666 नो फॉल्स प्रॉफिट है, और बीस्ट कमान जो है, बीस्ट कमान और बीस्ट ये उसकी ट्रिनिटी है। और ये ट्रिनिटी जो है, ये उस वक्त ये गाग मिगाग की जंग में ये ट्रिनिटी जो है उसको खुदा जो है वो आग और गंधक की चीज में हमेशा के लिए उसका आत्मा कर दिया जाएगा। तो अजीज़ों बात ये है कि इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये इसका बहुत सारी, अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको बहुत सी हिजकिय्याल जो है उसका 38 चैप्टर को ज़रूर स्टडी करें, 38, 39 को, फिर आपको इसकी कुछ समझ आएगी। और फिर उसी में जब खुदा ने इस जंग को ख़त्म करना है तो उसी में लिखा है कि हिजकिय्याल में भी लिखा है, और दूसरा कहाँ पर है, एक और रेफरेंस भी है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो इसमें लिखा है, मुकाशफा में भी है कि यहाँ इसके आपको मिलता है कि उसने परिंदों को कहा कि हो और शेर हो और इनके इंसानों का गोश्त, क्या नाम है, कमांडरों का और इनका गोश्त हो, और वो ये हिजकिय्याल में भी लिखा, यहाँ भी लिखा है। तो यहाँ उसके साथ ये लिखा है कि बनी इसराइल उसको 3 साल तक उनके एमुनेशन को जलाते रहेंगे, 3 साल तक एमुनेशन जलाते रहेंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे, और उनकी लाशों को दफन करते रहेंगे। इतनी, और आपको इसका जिक्र मिलता है इसमें कि ये मुकाशफा के अंदर ही कि ये लश्कर जो है कितना होगा, 20 करोड़ का। देखिए 20 करोड़, मिलियन में मुझे नहीं पता ये कितना बनता है 20 करोड़। 10 million है? 10 million नहीं 10 तो नहीं, वो तो 20 है ना। 20 करोड़, हाँ तो 20 million 1 billion लगा लें, 1 billion 9 zeros। हाँ कुछ इसी तरह है। तो इतना, अब एक छोटा सा मुल्क आप देखिए, छोटा सा मुल्क है, इतनी दुनिया कहाँ से आई है? ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारे मुल्कों की फौजें हैं। चाइना की फौज, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा, आपको पता है चाइना की फौज तो अकेली मेरे ख्याल 20 करोड़ हो गई। रशिया की फौज बहुत है, रशिया ने ये जो जंग है, इस जंग के अंदर उसने अपनी आर्मी नहीं भेजी अभी तक पूरी, उसने ये जेलों से वो जो जिनको अरेस्ट किया हुआ था उनको निकाल के तो उनको उधर भेज दिया हुआ है। वो इसलिए बहुत सारे मारे मुरे गए क्योंकि वो इतने ट्रेन तो नहीं थे। वो है रशिया है, ये मिडल ईस्ट के तो आपको पता है सारे लोग ही वो तो पहलवान है सारे। और ईरान तो सबसे बड़ा चैंपियन बना हुआ है कि अगली सफ़ों में हाँ अगली सफ़ों में है। वो तो कहता है कि इसराइल को वाइप आउट कर दो, दुनिया के मैप से वाइप आउट कर दो, बस खत्म। वो तो पहले बहुत है। और उसके साथ अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो उसका मुखालिफ था, अभी उनकी भी कोई थोड़ी बहुत सुलह हो गई। दुनिया का जो सिस्टम निज़ाम है वो देखे किस तरह से बदल रहा है, और ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक चल रहा है। और बिल्कुल इस तरह मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये जो दिन तो थोड़े ही हैं अभी रोज़ों के, लेकिन आप जितना ज़्यादा खुदा में, खुदा के साथ वक्त गुजारें उतना ही अच्छा है। दिन हो रात हो, आप वक्त खुदा के साथ रोज़ा रखें खुदा के साथ, क्योंकि वक्त वाकई बहुत कम हो रहा है, वक्त बहुत कम हो रहा है। और उस वक्त फिर ये भी बात है कि जो यहाँ रह जाएंगे उनके लिए फिर तौबा की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तौबा भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब खुदा का गज़ब भड़केगा तो उस वक्त तौबा नहीं होगी, ये आप याद रखें।
ये जो गज़ब की बात हम कर रहे हैं, ये जहाँ जो कुछ लिखा है, ये जब गज़ब का वक्त आएगा तो फिर उस वक्त तौबा नहीं होगी, आप माफ़ी नहीं मांग सकते खुदा से, क्योंकि वक्त पूरा हो गया। बहुत सारी कौमों का आप देखें, बनी इस्राइल क्या नाम उसको, मिस्र के मुल्क को देखें, ये सारे जब ये बनी इस्राइल मुल्क के मौत में दाखिल होने को थे, तो उसके इनको पढ़े स्कूलों के अंदर, तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि बनी इस्राइल को 430 साल जो है वो मिस्र में क्यों गुजारने पड़े, क्योंकि हित्तियों, अमोरियों, जबूसियों के गुनाह पूरे नहीं हुए थे। खुदा ने हमसे बदला लेना था और बदले के लिए उसने बनी इस्राइल को वहाँ भेजा, और उसने इसीलिए उन्हें कहा कि उनको मुकम्मल ख़त्म कर दो, इनके जानवर भी, इनके बच्चे, बीवियाँ, सबको कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि उनके गुनाह पूरे हो गए थे। और जब गुनाह पूरे हुए तो फिर खुदा ने बनी इस्राइल को मुल्क मौत में डाला कि वो उस मुल्क पर कब्जा कर ले। तो अजीजों, बात यह है कि खुदा के उस गज़ब तक नहीं पहुंचना चाहिए। याद रखें, खुदा के उस गज़ब तक नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले खुदा हमें दावत देता है कि आओ, तौबा करो, माफ़ी मांगो, मेरे साथ चलो। अगर हम में से कोई आज भी इस मौका पर भी अगर वो इस हालत में है कि खुदा को उसने इग्नोर किया हुआ है, तो मैं आपको दावत देता हूँ तो वो ज़रूर इन सारे हालात को सामने रखकर वो ज़रूर खुदा के पास आए, वो रोज़ा भी रखे, रोज़े रख कर खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा उसको अपने पास बुलाए, खुदा उसे बरकत दे और उसे अपनी बादशाहत में कबूल करे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।